Summary of lesson number 1, 2 and 3, class 5, subject computer. Lesson number 1 is regarding the generations of computers. Generation, dear children, we all have different generations of people in our family, like grandparents, parents and children. In the same way, computers also has its generations. Computers initially in the early time, computer they were of different types. अलग तरह के computers थे, but with the advancement of the technology, computers की shape, size, उनकी capability सब change होती गई. So these and इनको हम generations में divide करते हैं. So we will be discussing the generations of computers. Generation means remarkable improvement in any product. So we can say the generation of computers means remarkable improvement or growth and development in computer technology. So computer technology की changes के साथ we consider the computer in the different generations. The different computer generations are categorized according to their technology of basic computing elements. Now, first generation computers. From the year 1946 to 1958, जो computers develop हुए थे, जो computers थे, they belong to first generation computers. The first generation computer started in 1946 and इसमें vacuum tubes use होती थी. A vacuum tube is of such a big size, ये pencil से double size की थी approximately. And इसको कंप्यूटर को बनाने के लिए lot of vacuum tubes are used. So ये computers बहुत बड़े size के थे, इनकी operating speed slow थी, बहुत ज़्यादा electricity consume होती थी, expensive थे and so on. So these computers basically the thing you need to remember about the first generation is the year in which they started and the component used inside the first generation computers. जो ENIAC and UNIVAC हैं, these are the example of first generation computers. अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की ड्रॉबैक्स ये थे कि ये बहुत हीट प्रोड्यूस करते थे, दे वर नॉट दैट रिलायबल एंड इनमें मशीन लैंग्वेज यूज होती थी विच इज द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ टू ओवरकम दीज ड्रॉबैक्स, अब जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रॉबैक्स और प्रॉब्लम्स थी, देन इनके लिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड. Second generation computers were developed between 1959 to 1964. Second generation computers, they used transistors in place of vacuum tubes. अब इनमें vacuum tubes की जगह transistors लगने शुरू हो गए. The second generation computers में assembly language use होती थी इनको प्रोग्राम करने के लिए. IBM 140, Mark III and Leo are the example of second generation computers. इसके features क्या थे? इनका size as compared to the first generation small था. Operating speed भी थोड़ी fast थी और cost भी थोड़ी reduced हुई. But drawback is that again ये speed fast तो उससे थी but not that fast. बहुत कम मेमोरी थी and it also produces a lot of heat. Then after 1964, third generation computers were developed. These computers were developed between 1965 to 1900
1970। अब इनमें क्या था, ट्रांजिस्टर्स वर replaced by integrated circuits, also known as the semiconductor chips। अब इनकी हेल्प से, अब इनके जो फीचर्स थे थर्ड जनरेशन के, अब दे साइज इनका स्मॉल हो गया एज कंपेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड। दे वर मोर रिलायबल, यूजर इंटरेक्टेड विद कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर्स। अब थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स यूज होने लग गए थे। अब they generated less heat and they used high level language like COBOL and Fortran। Now, after that, fourth generation computers were developed from 1971 onwards। Fourth generation's computers started in 1971। Now, अब इनमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो थे microprocessor। The size of the computer became very small as thousands of IC chips were built onto a single silicon chip। These computers became more powerful and they could be linked together to form network, which led to the development of internet। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में अब तक इंटरनेट भी यूज होने शुरू हो गया, तो इन कंप्यूटर्स की जो एफिशिएंसी थी वो और इंक्रीज हो गई। इंटेल 4004, मैकिंटोश एंड IBM 370 ये एग्जांपल्स थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। और इनमें भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी, सो इनमें C++, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होनी स्टार्ट हुई। The fourth generation computers are so small that they can fit on a small desk or even on the palm of a hand। In 1981, IBM introduced its first personal computer for the home users और 1984 में Apple introduced the Macintosh। फोर्थ जनरेशन के फीचर्स क्या थे? They uses microprocessor, multi-purpose computers थे, they are accurate and reliable और इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट थी। ठीक है, ऑपरेटिंग स्पीड बहुत फास्ट थी। सो डू रिमेम्बर कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर वाज यूज्ड। लास्ट इज फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। अभी इन पे वर्क चल रहा है और नेक्स्ट जो भी कंप्यूटर्स आने वाले हैं वो इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होंगे। अब इनमें टेक्नोलॉजी क्या है? that they uses artificial intelligence but they are still in the development। अब मेन गोल फिफ्थ जनरेशन का क्या है? It is to develop the computers that can respond to the natural language। इनको कोई मशीन असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज नहीं चाहिए। अब ये दे वांट कि ये कंप्यूटर्स हमारी नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड करें। Right, so this is all about the generations of computers। Lesson number 2 is on computer languages। Now, computer language, it is a special language understood by the computers। अगर हमने कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करना है, we want कि कंप्यूटर्स हमारी इंस्ट्रक्शंस पे एग्जीक्यूट करे कमांड्स, तब हमें we need to learn a language। अब जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, it consists of words, symbols and codes that is used to write a computer program। और प्रोग्राम क्या होता है? It is a set of instructions जो हम कंप्यूटर को देते हैं to perform a particular task। और the process of जो persons प्रोग्राम लिखते हैं, they are known as programmers and this is known as this process is known as programming। Now, अब जैसे ह्यूमन बहुत सारी लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड करते हैं, पर कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज द मशीन लैंग्वेज। So categories of programming language।
अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज द लो लेवल लैंग्वेज एंड द हाई लेवल लैंग्वेज. नाउ लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? द लैंग्वेजेस जो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज है, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ लो लेवल लैंग्वेज. एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, नॉन प्रोसीजरल एंड द natural languages. So low level language are written to run on a particular computer. अब इन लैंग्वेजेस को लो लेवल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें जो प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पे बनाया जाता है इट कैन बी यूज्ड ओनली ऑन दैट कंप्यूटर. इसे हम दूसरे कंप्यूटर पे शिफ्ट नहीं कर सकते. तो जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है. मशीन लैंग्वेज आपको इफ यू रिमेम्बर अभी हमने लेसन नंबर 1 में डिस्कस किया था कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती, राइट? एंड इन द सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड. मशीन लैंग्वेज ये सिर्फ जीरोस और वंस की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है और मशीन लैंग्वेज को हम डायरेक्टली कंप्यूटर में फीड कर देते हैं. इसके लिए किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट व्हेयरएज जो असेंबली लैंग्वेज है इसमें लेटर्स और सिंबल यूज्ड होते थे इंस्टेड ऑफ जीरोस एंड वंस. और जब ये प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में हम बनाते हैं जो भी प्रोग्राम, इसको हम सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं. बट अब इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है टू द मशीन लैंग्वेज बिफोर एंड सो दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट. कंप्यूटर तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है. तो अगर हमने कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा है so we need to convert it into the machine language. So अभी अगर हमने कोई भी प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा है तो उसे मशीन में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम यूज होता है उसका नाम है assembler. So assembler is a program which converts the program written in assembly language to machine language. Next is the high level languages. अब high level languages की भी 3 categories होती हैं, procedural, non procedural and natural. अब high level languages में instructions होती हैं which are almost similar to English language. They are very user friendly and resembles the language that we use. So, but high level language ये भी machine independent होती हैं. Independent means आपने किसी भी प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम डिजाइन किया है वो हम किसी भी कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं. बट अगेन वन थिंग दैट कंप्यूटर कोई भी और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं करता. सो हमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को भी कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्टर्स या ट्रांसलेटर्स चाहिए होते हैं. सो इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर ये 2 कन्वर्टर्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. सो अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है? जो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो थी प्रोसीजरल लैंग्वेज. अब प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन कौन सी थी? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रन आर द एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. नेक्स्ट डेवलप हुई नॉन प्रोसीजरल. अब नॉन प्रोसीजरल जो लैंग्वेजेस थी वो यूज होती थी 4th जनरेशन कंप्यूटर्स में. अब इस लैंग्वेज में क्या था कि प्रोग्रामर ओनली स्पेसिफाई व्हाट द प्रोग्राम शुड अकॉम्प्लिश विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ. ये और इजी लैंग्वेजेस हो गई. इसमें
जो प्रोग्रामर था उसको बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड नहीं होती थी। जो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लैंग्वेजेस थी जिसमें प्रोग्रामिंग करनी बहुत इजी थी। जो जिनको नहीं भी ज़्यादा प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड आती थी वो भी इसमें प्रोग्राम्स अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ जो नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स थे विजुअल बेसिक, ओरेकल, जावा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज में आती है नेचुरल लैंग्वेज। अब नेचुरल लैंग्वेज ये यूज होती हैं इन द 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। इट इज अ टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज that allows the user to enter requests that resemble human speech। मतलब ये ऐसे कंप्यूटर्स होंगे जो सिर्फ हमारी सिंपल लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर लेंगे। राइट, नेचुरल लैंग्वेजेस आर ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Now next comes the language processor. I've already discussed it कि जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, जब हमने एक बात बता दी कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, सो हमें अगर हम किसी भी और लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें कन्वर्टर्स, प्रोसेसर्स या ट्रांसलेटर्स चाहिए। सो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ये दो कन्वर्टर्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं टू द मशीन लैंग्वेज। डिफरेंस क्या होता है कि कंपाइलर सारे के सारे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है, वेयर एज इंटरप्रेटर वन लाइन को कन्वर्ट करता है एंड देन इट प्रोसीड्स टू द नेक्स्ट लाइन। नाउ सम हाई लेवल लैंग्वेजेस जो यूज होती हैं, बेसिक, लोगो, कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड जावा। सबके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। कोई किसी पर्पस के लिए यूज होती है, कोई वेब पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, कोई नॉर्मल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्पस कि हमने किस पर्पस के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना है। बेसिक इज बिगिनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। लोगो है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन इज फॉर्मूला ट्रांसलेशन एंड द जावा इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। oops लैंग्वेज है ये, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन नंबर 2। Lesson number 3 is algorithms and flowcharts. Now, dear children, you know that being a machine, a computer understands instructions given to it in its language, that is machine language, that we have already discussed in the lesson number 2. So, let us understand it in the following manner. If someone asks you to add 8 plus 5, you will quickly give the answer. But if the same question is asked from the computer, it will not be able to answer this because जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। So, the instructions written in a language which a computer can understand is called a program. अब कंप्यूटर्स में क्या होता है कि जब हमने कोई प्रोग्राम लिखना होता है, ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है: एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड देन प्रोग्राम। Algorithm, creating an algorithm, then creating a flow chart, and then to convert it into a program. Now let us discuss what is an algorithm. अब algorithm क्या होता है? All the software programs are written in special language called computer language, right? This we have already discussed. They follow a specific pattern of steps to achieve specific objective. So, जब भी हमने कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हमें
पहले उस प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड करते हैं, राइट। हम कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली एकदम से नहीं लिख सकते। सो हम जब भी कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में लिखते हैं तो सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम बनाया जाता है। एल्गोरिदम के बाद उसको कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में, और फिर उसके बाद हम फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम में। अब सबसे पहले एल्गोरिदम क्या होता है? अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क सच एज अ मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम। हम जब भी कोई आप सम करते हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको हमेशा स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके करते हैं। इससे हमें प्रोग्राम की, अपनी सम की सीक्वेंस पता चल जाती है, और इसमें हमारे में फिर हमारी प्रोग्राम में एरर नहीं आती। ऐसे ही जब हमने कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखना होता है तो हम पहले उसको एक रफ में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे ये देखो, ये एक एग्जांपल है, एन एल्गोरिथम टू ऐड एनी टू नंबर्स। अगर हमने दो नंबर्स ऐड करने हैं, सबसे पहले द स्टेप 1 और लास्ट वाला स्टेप हमेशा फिक्स होता है, स्टार्ट एंड द स्टॉप। अब टू नंबर्स को प्लस करना है तो हमें टू नंबर्स चाहिए यूजर से। टेक टू नंबर्स, देन उनको ऐड करो। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम प्रिंट कर देंगे। सो दिस इज नोन एज एल्गोरिथम। दिस इज अगेन एन एग्जांपल जिसमें हमें फाइंड करना है which of the number is greater from the two numbers. So this you can read on your own. Dear children, जब हमने फ्लो चार्ट एल्गोरिदम क्रिएट कर लिया, then the next step is to convert this algorithm to the flow chart. अब फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करने से पहले let us discuss about the flow chart. फ्लो चार्ट क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जब हम किसी प्रॉब्लम को एक डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये फ्लो चार्ट बन जाता है। और रिमेंबर वन थिंग, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब फ्लो चार्ट में जो सिंबल्स यूज होते हैं, दीज आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर डिजाइनिंग अ फ्लो चार्ट। सबसे पहला होता है स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। स्टार्ट स्टॉप बॉक्स जो है ये ओवल शेप बॉक्स होता है एंड इट इज यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। देन नेक्स्ट होता है इनपुट आउटपुट बॉक्स। दिस पैरेललोग्राम बॉक्स इज नोन एज इनपुट आउटपुट बॉक्स एंड एज इट्स नेम इंडिकेट्स, जब भी हमने कोई कंप्यूटर में इनपुट करनी है या आउटपुट लेनी है, हम इसे यूज करते हैं। Then processing box. This rectangular shaped box is used for performing the calculations. Decision box. ये जो rhombus shape symbol होता है, it is used for taking decisions. कहीं पर आपके पास कोई ऑप्शन हो, जब आपके पास प्रोग्राम में कोई ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन, तो हम डिसीजन बॉक्स यूज करते हैं। फ्लो लाइंस, दीज एरो लाइंस आर नोन एज द फ्लो लाइंस। ये सिंबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। एंड लास्ट इज कनेक्टर। इट इज अ सर्कल शेप्ड सिंबल that is used to join the parts of a flow chart. If you are writing a flow chart, आप एक कॉपी पे फ्लो चार्ट लिख रहे हो, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द स्पेस आपको फ्लो चार्ट नेक्स्ट पेज पे करना है, तब हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं एज अ कनेक्टर। नाउ एडवांटेजेस क्या होते हैं? फ्लो चार्ट, it helps in analyzing the problem in a effective way. It is a better way of communicating the logic of a system. हमें अपने प्रोग्राम का लॉजिक क्लियरली फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ आ जाता है।
It acts as a guide during the program development phase और moreover ये help करता है to find out the errors. अब disadvantages क्या होती हैं कि कई बार फ्लो चार्ट बहुत, अगर प्रोग्राम का लॉजिक लंबा हो तो फ्लो चार्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और अगर आपकी कोई एरर हो जाती है तो आपको सारा का सारा फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ता है. Now, some rules. While drawing a proper flowchart, all necessary requirements should be listed out in a logical order. Flowchart should be clear, neat and easy to follow. Only one flow line should be used in conjunction with terminal symbol. जब हमने ये flow lines use करनी है, ये हमें एक ही line use करनी है connecting between the two symbols. So avoid the intersection of flow lines if you want to make it more effective and better. If the flow chart becomes complex, it is better to use connector symbol to reduce the number of flow lines. आप ये सब flow chart आप read करना. This is an algorithm. एक simple सा algorithm है how to get ready for the स्कूल. जब आपने स्कूल जाना है तो आपने कैसे रेडी होना है, ये उसका एल्गोरिदम है और फिर उसका फ्लो चार्ट है. Two more examples. First is converting an algorithm into a flow chart for adding two numbers. अब ये एक एल्गोरिदम है जो हमने लिखा है for adding the two numbers and then we have converted it into a flowchart. Step 1 is to start, so we will use this oval shape symbol to indicate the start of a flowchart. Step 2 is take two numbers. Now you know कि अगर हमने कोई input values लेनी है तो उसके लिए हमें input output box लेना है, that is this parallelogram box. अब this is the input values हो गई. Now add the two numbers. अब this is the processing part. So processing के लिए हमें एक process box चाहिए जहाँ पे हमने calculation करनी है. Sum is equal to n1 plus n2. Step number 4 is print the result. अब result जब हमने print करना है तो ये output हुआ. So output के लिए we will be using the input output box, that is this parallelogram box. Print sum. And the last is to stop the flow chart. This you will do on your own, right? This is a algorithm and a flow chart to find the area of a rectangle. Now, after creating an algorithm and then converting the algorithm into flowchart, the last step in solving a problem is to convert the flowchart into a program. This can be written in the computer language to get the desired result. इसको आप किसी भी computer language में लिख सकते हैं. There are many computer languages. Right? So, normally an algorithm is first represented as a flowchart and the flowchart is then expressed in a programming language to prepare a computer program. अब main advantage इस two-step approach की क्या होती है that while drawing a flowchart, the programmer need not pay attention to the details of the elements of programming language. इसमें क्या होता है कि जो प्रोग्रामर है वो फ्लोचार्ट जब बनाता है तो वो सिर्फ प्रोग्राम के लॉजिक पे ध्यान देता है. सो उसका प्रोग्राम रॉन्ग नहीं होता, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसे क्लियर हो जाता है. फिर वो जब इसे कन्वर्ट करता है तब वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एलिमेंट्स को डिटेल में चेक कर लेता है और फिर वो आराम से उस प्रोग्राम को लिख लेता है. So thank you. This is all about the lesson number 3 also.